Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce CCSP, we'll be starting with our new chapter, that is chapter number 3 from CC portion, that is interdepartmental and employee related correspondence. So in the first two chapters of CCSP, especially CC, we have learned about the bank correspondence and then correspondence with the governments and related authorities or related associations. Now in this chapter, we'll be studying how to communicate within the organization or within with the employees and so on. So first let us have a look on what we will learn in this chapter. First we'll start with the introduction of interdepartmental correspondence. What is interdepartmental correspondence actually is, then need for the same, then what is the meaning of notice, what is the objectives of notice, then we'll be studying about circular, meaning of circular, functions of circular, characteristics of circular, and difference between notice and circular. So students, till 3.1.8 we'll try to cover in today's video only. यहाँ तक हम आज की वीडियोस में कंप्लीट करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आज में इतना हम समझ लें. ओके, नेक्स्ट वीडियो विल बी हैविंग मॉडल लेटर्स फॉर इंटरडिपार्टमेंटल correspondence. Then we'll have memo, meaning of memo, characteristics of memo, and again model letters including memo. Then we'll be having employee related correspondence. This is, अब ये जो था अभी तक था इंटरडिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बाद आएगा एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस. एम्प्लॉयज अगर कॉरेस्पॉन्डेंस है करना होता है तो कैसे करेंगे. सो इंट्रोडक्शन फॉर दैट, रिक्रूटमेंट एंड मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड देन मॉडल लेटर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट के लेटर्स कैसे होंगे, अपॉइंटमेंट, मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, details to be included in appointment letter and model appointment letter, sample appointment letters, then promotion, reason for promotion, model letters regarding promotion, then transfer, objectives of transfer, model letters of transfer, demotion, circumstances regarding demotion, then model letter of demotion, then completion of service, मॉडल लेटर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस. तो जो दो, ये पूरा चैप्टर हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अदर इज कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू एम्प्लॉय. ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसमें आज हम एक सेशन में अप टू डिफरेंस कर लेंगे 3.1.8 तक. देन वन सेशन probably will be having for model letters of the same, then the remaining part of memo, characteristics of memo, model letters. So in short, the interdepartmental correspondence का जो पार्ट है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, वो हमारा 2 से 3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा. देन विल बी टॉकिंग अबाउट इंटर कॉरेस्पॉन्डेंस विद एम्प्लॉयज. अब एम्प्लॉयज के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कब कब करना होता है, कब कुछ नया रिक्रूटमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, डिमोशन हो, सर्विसेज का कंप्लीशन हो. सो उन केसेस 6 केसेस हैं, उन 6 केसेस को विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट दैट इन another 2 or 3 sessions. Okay, so let us start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज इंटरडिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस. नाउ व्हाट इज इंटरडिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस. हमने अभी तक ये तो समझ गया कि डिपार्टमेंट के अंदर अंदर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और अदर वे जो कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं उसको हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल correspondence. Let us see book क्या कहती है. In the competitive and continuously changing business world, business firm or organization have to remain in constant contact with its various departments for the purpose of business progression and successful management. जितना बिजनेस डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो बिजनेस फर्म को उनके खुद के डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना जरूरी है प्रोग्रेशन और सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए. कॉरेस्पॉन्डेंस इज नेसेसरी अमंग द डिपार्टमेंट्स, और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन नेसेसरी है. दिस कॉरेस्पॉन्डेंस जनरली टेक्स प्लेस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद ऑफिसर ऑफ द रेस्पेक्टिव
डिपार्टमेंट्स। और ये कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन जो होता है वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, जनरली ऑफिसर्स लेवल पे ही होता है। Thus, the correspondence carried out from the head office to a branch and from the branch to head office is called interdepartmental correspondence. क्या कहते हैं? The correspondence carried out from the head office to branch and branch to head office is called interdepartmental correspondence. एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफिस टू ब्रांच या ब्रांच टू हेड ऑफिस, इट इज नोन एज इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस। और इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस का एक दूसरा नाम है, उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस। उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस। जनरली जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस या इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं वो नोटिस, सर्कुलर और मेमो के फॉर्म में होते हैं। क्लियर? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस हम देखें, समझना चाहे सही तरीके से, तो वी कैन टेक आवर स्कूल। स्कूल के अंदर प्री प्राइमरी से कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन प्राइमरी से, या प्राइमरी का सेकेंडरी से कम्युनिकेशन, या सेकेंडरी का हायर सेकेंडरी से कम्युनिकेशन, और एनीथिंग वाइस वर्सा is known as interdepartmental correspondence. Okay, so communication with different department takes place either through oral instruction or through various media of communication. ये oral instruction से भी होता है और अलग अलग मीडियाज के communications के मीडिया को यूज करके भी होता है। Yet interdepartmental correspondence is necessary from the following point of view. मतलब कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन होता है वो या तो ओरल हो जाता है या किसी और मीडिया से, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, या कोई वीडियो पास ऑन करना था तो वीडियो पास ऑन कर दिया, या कोई भी मीडिया से या ओरली हो जाता है। लेकिन फिर भी इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस कंपलसरी है, नेसेसरी है। क्यों, देखते हैं। सो नेक्स्ट इज नीड फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस। इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों जरूरी है? सो देयर आर सम पॉइंट्स, लेट अस हैव अ लुक। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वर्बल इंफॉर्मेशन में बी फॉरगेटन बट कैन बी रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटर। हाँ, जो बोला हुआ है वो हमारे ना तो एज अ प्रूफ रहता है, ना ही चांसेस है कि हमें हमेशा याद रहेगा। सो रिटर्न जो भी होगा वो एज अ प्रूफ भी रहेगा, कैन बी, वी कैन गो बैक टू इट थ्रू एनी टाइम। ओके, सो सजेशंस जो है वो भूल सकते हैं हम वर्बल इंफॉर्मेशन के, लेकिन रिटर्न होगा या इन द फॉर्म ऑफ लेटर होगा तो हम उसको संभाल सकते हैं। Okay, so that is why it is important. Second, information ideas which are communicated between departments and the head office can be documented and served as evidence. हमने बात करी कि जो भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात होती है उसको हम एज अ प्रूफ रख सकते हैं और एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं जरूर पड़ने पर। ओके, नेक्स्ट इज undesirable form or any information when there is hesitation in communicating face to face can be imparted freely through correspondence. मीन्स कोई ऐसी बात जिसको फेस टू फेस करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या हमें एम्बेरेसिंग फील कर रहा हो, या कोई हेजिटेशन हो रही हो, उसको हम इजीली कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू इम्पार्ट कर सकते हैं, मैसेज फ्लो कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये समझ लीजिए कि हम जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस वर्ड यूज करते हैं तो रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स, तो उसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज employee becomes conscious and about one's duty if the work is assigned in a written form. Very true. अगर रिटर्न फॉर्म में कोई वर्क असाइन होगा तो वो उस वर्क को लेकर कोई भी एम्प्लॉय होगा वो ज़्यादा सीरियस होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क मी टू गो टू अ वेकेंट क्लास, कोई मुझे ये कहता है कि मुझे जो स्कूल में मेरा फ्री पीरियड है उसमें जो खाली क्लास दिख रही है, जिस क्लास में टीचर नहीं है, एब्सेंट है, मुझे उस क्लास में जाना है। सो आई वुड नॉट बी दैट मच सीरियस, बट मुझे प्रिंसिपल से बोला कि आपको 5th पीरियड फ्री है, आपको 5th पीरियड में 11th कॉमर्स में जाना है या 12th कॉमर्स में जाना है। ओके, सो आई वुड बी मोर सीरियस फॉर इट। ओके, सो every work assigned in written form, the employee becomes more conscious. Okay, next is information can be filed and may be useful. फाइल्ड भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी काम आ सकती है हमारे पास। एंड लास्ट इज लेस एक्सपेंसिव है एंड ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके,
less expensive and more effective medium of communication or correspondence between the two departments of an organization. ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और ये भी जान लिया कि इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस की जरूरत क्या है. ओके, नेक्स्ट इज नोटिस. अब हमने ये भी पढ़ा था कि इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो 3 चीजों से होता है, नोटिस, सर्कुलर एंड मेमो. ओके, first is notice. What is notice? Let us see. A letter that is written to communicate, to let the employees of office know and implement the changes regarding the legal or constitutional matters or structural changes in the institutional issues of a business firm or organization is known as notice. ऐसा लेटर जो कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज फ्लो करने के लिए लिखा गया हो एम्प्लॉयज तक कि वो ये जान ले कि जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं, लीगल चेंजेस हो या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो इंस्टीट्यूशन के या बिजनेस फर्म के, तो उसे हम बोलते हैं नोटिस. सो इन शॉर्ट, बिजनेस फर्म के या इंस्टीट्यूशन के कोई ऐसे मैटर्स, कोई ऐसे चेंजेस जो इम्प्लीमेंट करने हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो या लीगल मैटर्स हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करने हो और वो रिटर्न फॉर्म में फ्लो किया जाए, देन इट इज नोन एज notice. Then it is known as notice. Okay, now talking about objectives of notice. Notice का objectives क्या क्या होता है? To draw the attention of employees when policy matters are not being followed strictly. जो policy हमने बनाई है वो अगर strictly follow नहीं हो रही तो उसकी तरफ attention draw करने के लिए हम notice use करते हैं. To inform the employees the changes made according to the circumstances. अगर कोई changes में हमने changes किए हैं तो उसके बारे में नॉलेज में लाने के लिए एम्प्लॉयज़ को या इन्फॉर्म करने के लिए. टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू सेट ऑर्डर और स्पेसिफिक पीरियड. एम्प्लॉयज़ से प्रॉपरली ड्यूटी कराने के लिए भी हम नोटिस यूज करते हैं. टू असाइन अ पर्टिकुलर वर्क टू अ पर्सन एंड द टाइम लिमिट एंड लोकेशन टू कंप्लीट द वर्क. एक पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर काम देने के लिए या टाइम लिमिट के अंदर काम खत्म करने के लिए या लोकेशन पे काम खत्म करने के लिए भी हम नोटिस यूज करते हैं. एंड लास्ट इज, कोई किसी को प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोलना हो या कोई और रीजन से कुछ इन्फॉर्म करना हो तो हम नोटिस का यूज करते हैं. क्लियर? सो दिस वाज नोटिस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस. नोटिस हमें पता चल गया क्या है. नाउ कम्स द सर्कुलर. अब सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर क्या है? A letter written on regular basis to a group of employees with a view to inform them about the code of conduct decided by the management of a business firm or organization is called circular letter. Circular letter has its practical and administrative attitude. Okay, so notice में देखा कि रिटर्न लेटर जो हमें चेंजेस इन्फॉर्म करने के बारे में या फिर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस या कोई भी चेंजेस इन्फॉर्म करने के बारे में हो. सर्कुलर क्या है? सर्कुलर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को जनरली भेजा जाता है जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट कैसे प्रॉपरली फॉलो करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर मैनेजमेंट ने कि बिजनेस फर्म के मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने कोई चेंजेस डिसाइड किए हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है. जनरली सर्कुलर लेटर जो होता है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होता है. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ सर्कुलर. सर्कुलर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं कि इट गाइड्स द एम्प्लॉय को गाइड करते हैं उनके खुद के स्कोप ऑफ वर्क के क्या उनका स्कोप ऑफ वर्क है. ओके, नेक्स्ट इज इट ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन बाय टेकन बाय द मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टूवर्ड्स उनको अटेंशन करता है, उनको इन्फॉर्म करता है. इट क्लैरिफाइज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करता है मैनेजमेंट, ये भी क्लैरिफाई हो जाता है सर्कुलर के थ्रू. और इट ऑल्सो मेंटेन्स द इक्वलिटी अमंग एम्प्लॉयज. इक्वलिटी अमंग एम्प्लॉयज क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को सबको एक जैसा मिलता है. क्लियर? नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर देखें तो सर्कुलर एक रिटर्न होता है एड्रेसिंग नॉट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय बट द एंटायर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज. पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सर्कुलर रिटर्न तो होता ही है लेकिन किसी एक एम्प्लॉय को ना होकर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को होता है. ओके,
मैटर मेंशन इन सर्कुलर इज एप्लीकेबल टू ऑल मेंबर्स। जो भी मैटर सर्कुलर में मेंशन किया है वो जिस ग्रुप को भेजा उस ग्रुप के सारे मेंबर्स को एप्लीकेबल होता है। सर्कुलर का मैटर फॉर्मेट भी दूसरे लेटर की तरह ही फॉर्मेट होता है, लेकिन कभी कभी इनसाइड एड्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, डेट और टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इट शुड बी वेरी क्लियरली मेंशन्ड। And last one is more likely an attention drawing tool for a particular group of employees regarding implementation of policy decision। जैसे हमने कहा कि सबको नहीं दिया जाता, सपोज 80 एम्प्लॉयज है तो 80 एम्प्लॉयज को नहीं दिया जाएगा सर्कुलर। सर्कुलर अगर 20 एम्प्लॉयज के ग्रुप को दिया गया दैट मीन्स कि वो ग्रुप ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा उस पर्टिकुलर अटेंशन ड्राइंग को लेके, क्योंकि उनको लगेगा कि सिर्फ उनको ही दिया है, कोई पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड है या कोई भी डिसीजन रिलेटेड है उनको दिया तो उनको वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक स्पेशल केयर स्पेशल अटेंशन पे करेंगे। ओके, सो नोटिस एंड सर्कुलर दोनों ही अवेयरनेस लाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू वर्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन के थ्रू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में दोनों रिटर्न फॉर्म में होते हैं, लेकिन स्टिल देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम। ओके, सिमिलरिटीज में हमें लगा कि दोनों रिटर्न फॉर्म में है, दोनों अवेयरनेस लाते हैं, दोनों में स्पेसिफिक कंटेंट होता है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। देखें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से समझना। नोटिस क्या है? नोटिस या तो इंडिविजुअल या तो ग्रुप, दोनों में से किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी हम सेंड कर सकते हैं। और सर्कुलर जनरली ग्रुप के लिए ही होता है। ओके, सेकंड डिफरेंस, नोटिस के थ्रू लीगल व्यू पॉइंट भी क्लैरिफाइड हो जाता है। ओके, बट ऑन द अपोजिट साइड सर्कुलर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट क्लियर होते हैं। नोटिस में लीगल क्लियर होता है, सर्कुलर में प्रैक्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियर होता है। ओके, नोटिस इज टू वे कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज कैन गिव नोटिस टू मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कैन गिव नोटिस टू एम्प्लॉयज। नोटिस कोई भी किसी को दे सकता है, एम्प्लॉय मैनेजर को दे सकता है, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। जबकि सर्कुलर वन वे है, सर्कुलर हमेशा मैनेजमेंट से या सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ ही फ्लो करेगा। ओके, नोटिस कैन बी इशूड ऑन द मैटर्स फॉर विच नोटिस इज सर्कुलर। उन मैटर्स पे भी इश्यू हो सकता है जिनके खिलाफ नोटिस सर्व किया है। ऑन द अदर हैंड, जिन मैटर्स पे सर्कुलर दे दिया है हमने उस पर हम नोटिस नहीं दे सकते। क्लियर? सो दिस वाज योर डिफरेंसेस फॉर नोटिस एंड सर्कुलर। सो आज के वीडियो में हमने सीखा इंट्रोडक्शन टू interdepartmental store, need of interdepartmental communication, then we learned about notice, then we learned about characteristics and all about notice, and then circular functions, characteristics of circular, importance of circular, objectives of notice, और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा नोटिस और सर्कुलर के बीच का डिफरेंस। ओके, सो आई होप यू guys have understood something from this. If you are having any doubt, please fill down the comment section. We will be coming up with next videos, next part of this chapter with next videos in tomorrow's session. So till then, stay home, stay safe, happy learning.